شادی کرنا زندگی کا سب سے مشکل فیصلہ ہوتا ہے۔ شادی کا فیصلہ کرنے سے پہلے ہم استخارہ کرتے ہیں، دوستوں اور رشتہ داروں سے مشورہ کرتے ہیں، لیکن کیا آپ کو پتہ ہے کہ 5 طریقے جن سے اللہ اشارے دے دیتا ہے کہ کس سے شادی کرنی چاہیے، لیکن کچھ لوگ ان اشاروں کو سمجھ جاتے ہیں اور اچھا فیصلہ کر جاتے ہیں، لیکن کچھ لوگ ان اشاروں کو سمجھ نہیں پاتے اور غلط فیصلہ کر جاتے ہیں اور پھر ساری زندگی اس غلط فیصلے کا خمیازہ بھگتتے ہیں۔ وہ 5 طریقے جن سے اللہ اشارے دے دیتا ہے کہ کس سے شادی کرنی ہے میں سب سے پہلا اشارہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، کیا آپ نے کبھی دل سے سوچا ہے کہ میری شادی کس سے ہونی ہے؟ کیا وہ شخص جو میری زندگی میں آئے گا واقعی میرا مقدر ہوگا؟ آج کے دور میں ہر دل کے اندر ایک عجیب سا خوف اور بے چینی ہے۔ لڑکی والے ڈرتے ہیں کہ کہیں غلط ہاتھ میں اپنی بیٹی نہ دے دیں، اور لڑکے والے خوف زدہ ہیں کہ کہیں کوئی غلط فیصلہ نہ کر بیٹھے۔ ہر کوئی دعاؤں میں یہی التجا کرتا ہے، یا اللہ ہمیں وہ انسان عطا فرما جو ہمارے نصیب میں بھلائی اور سکون لے کر آئے۔ لیکن کیا آپ نے کبھی یہ سوچا کہ واقعی اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ہمیں کس سے شادی کرنی چاہیے؟ اور اگر بتاتا ہے تو کیسے؟ کیا وہ کوئی آواز دیتا ہے، یا کوئی خواب، کوئی احساس، یا دل کا سکون اس کا پیغام ہوتا ہے؟ دراصل زندگی میں ہونے والی ہر ملاقات، ہر واقعہ، ہر لمحہ اللہ تعالیٰ کے منصوبے کا ایک حصہ ہوتا ہے۔ کبھی کوئی اجنبی آتا ہے اور دل کو چھو جاتا ہے، کبھی کوئی رشتہ بننے سے پہلے ہی ٹوٹ جاتا ہے، کبھی کوئی شخص خاموشی سے ہماری دعا کا جواب بن کر آتا ہے، مگر ہم اکثر ان اشاروں کو پہچان نہیں پاتے۔ ہم ظاہری چیزوں میں الجھ کر روحانی نشانیوں کو بھلا دیتے ہیں۔ آج کے زمانے میں لوگ شادی سے پہلے ڈرتے ہیں، سوچتے ہیں کہ کہیں زندگی کا سب سے اہم فیصلہ غلط نہ نکل آئے، اور یہ ڈر فطری ہے، کیونکہ شادی صرف 2 دلوں کا نہیں، 2 تقدیروں، 2 خاندانوں اور 2 روحوں کا ملاپ ہے۔ لیکن یاد رکھیں، اللہ خاموش نہیں ہوتا، وہ اپنے بندے کو رہنمائی دیتا ہے۔ بس ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم دل کی آنکھوں سے دیکھنا سیکھیں۔ کبھی وہ دل کے سکون سے یہ اشارہ دیتا ہے، کبھی استخارے کے ذریعے، کبھی حالات کو آسان بنا کر، اور کبھی ایسے شخص کو آپ کی زندگی میں بھیج کر جو آپ کے ایمان، سوچ اور مزاج سے مطابقت رکھتا ہو۔ یہ ویڈیو انہی نشانیوں کے بارے میں ہے، ان 5 طریقوں کے بارے میں جن سے اللہ تعالیٰ خود آپ کو بتاتا ہے کہ آپ کو کس سے شادی کرنی چاہیے۔ اگر آپ نے ان نشانیاں کو پہچان لیا تو آپ کا دل کبھی غلط فیصلہ نہیں کرے گا۔ یہ ویڈیو صرف شادی کے بارے میں نہیں، یہ ایمان، دعا اور اللہ کی حکمت کو سمجھنے کا سفر ہے۔ چلیے اس روحانی سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ 5 طریقے جن سے اللہ اشارے دیتا ہے کہ کس سے شادی کرنی چاہیے میں پہلا اشارہ۔ جب تقدیر تمہارے گرد خاموش دائرہ بناتی ہے اور ہر راستہ نرمی سے ایک سمت جھکنے لگتا ہے، زندگی میں بعض لمحے ایسے آتے ہیں جب سب کچھ بظاہر عام لگتا ہے، لیکن اندر ہی اندر کوئی غیر محسوس طاقت تمہیں ایک خاص سمت دھکیلنے لگتی ہے۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب تقدیر اپنا خاموش دائرہ تمہارے ارد گرد بنا چکی ہوتی ہے۔ تم سوچتے ہو کہ تم خود فیصلہ کر رہے ہو، مگر دراصل فیصلہ تمہارے لیے کیا جا چکا ہوتا ہے۔ پہلے تو یہ سب اتفاق لگتا ہے، راستے، لوگ، حالات سب بے ربط دکھائی دیتے ہیں، لیکن آہستہ آہستہ ایک ترتیب بننے لگتی ہے، جیسے کوئی نادیدہ ہاتھ تمہارے دنوں اور خوابوں کو ایک سمت خاص میں موڑ رہا ہو۔ تمہیں لگتا ہے کہ یہ محض حالات کا بہاؤ ہے، لیکن حقیقت میں یہ اللہ کی لکھی ہوئی لکیر ہے جو آہستگی سے تمہیں تمہارے نصیب تک لے جا رہی ہوتی ہے۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب کائنات تمہارے خلاف نہیں، تمہارے ساتھ سازگار ہونے لگتی ہے۔ جو دروازے بند تھے وہ خود بخود کھلنے لگتے ہیں، جو لوگ تمہیں روک رہے تھے وہ خاموشی سے راستہ دینے لگتے ہیں، اور جو چیز تمہیں مشکل لگتی ہے وہ اچانک آسان ہو جاتی ہے۔ یہ تقدیر کی وہ لطیف چال ہے جسے صرف حساس دل ہی محسوس کر سکتا ہے۔ اللہ کبھی اعلان نہیں کرتا
वो खामोशी से चीज़ों को तरतीब देता है। वो तुम्हारे दिल के इर्द गिर्द ऐसा हिसार बना देता है जिसके अंदर सिर्फ वही शख्स दाखिल होता है जो तुम्हारे नसीब में लिखा हो। तुम चाहो तो दूसरा रास्ता इख्तियार कर लो, मगर हर बार हालात तुम्हें वापस इसी एक सिमत खींच लाते हैं। ये वो खामोश दायरा है जहाँ इख्तियार का गुमान रहता है, लेकिन हकीकत में सब कुछ तकदीर के ज़ेरे साया होता है। और कभी कभी ये दायरा तुम्हें आजमाने के लिए उलझा देता है। तुम भागते हो, छुपते हो, इनकार करते हो, मगर जब थक जाते हो तो समझ आता है कि जिस चीज़ से भाग रहे थे वही तुम्हारे सुकून की मंजिल थी। अल्लाह के फैसले शोर नहीं करते, वो खामोशी में बुलंद होते हैं। और जब वो चाहता है कि तुम किसी ख़ास शख्स तक पहुँचो तो वो तुम्हारे रास्ते ऐसे मोड़ देता है कि तुम्हारा हर सफ़र, हर मोड़, चाहे तुम जितना भी मुख्तलिफ सोचो, आखिरकार इसी एक सिमत में जा ठहरता है। यही पहला इशारा है तकदीर का नरम झुकाव, जहाँ अल्लाह खामोशी से तुम्हें तुम्हारे मुकद्दर के दरवाजे तक ले जाता है, बग़ैर आवाज़, बग़ैर ऐलान, बस एहसास के हल्के लम्स से तुम्हें ये समझा देता है कि ये वही है, मेरी लिखी हुई कहानी है। 5 तरीके जिनसे अल्लाह इशारे देता है कि किससे शादी करनी चाहिए में दूसरा इशारा, जब कोई नाम तुम्हारे जिक्र में नहीं मगर तुम्हारे सुकून में बसा होता है। ज़िंदगी में कभी कभी कोई शख्स ऐसा आता है जिसका जिक्र तुम जुबान से नहीं करते, मगर तुम्हारी खामोशियों में इसकी मौजूदगी महसूस होती है। वो बातों में नहीं, एहसास में रहता है। तुम इसे याद नहीं करते, लेकिन तुम्हारा सुकून इसके नाम से जुड़ा होता है। ये वो लम्हा होता है जब अल्लाह दिल की गहराइयों में एक ऐसा तासर उतारता है जो लफ्ज़ों की गिरफ्त में नहीं आता। यह रिश्ता आम तल्लुकात की तरह शोर मचाता नहीं, ये एक लतीफ़ खामोशी है जो रूह के किनारे बैठ जाती है। कभी तुम इबादत में होते हो और अचानक दिल हल्का सा मुस्कुरा देता है। कोई चेहरा, कोई नाम, कोई एहसास बगैर बुलाए तुम्हारे ज़हन से गुजर जाता है और तुम नहीं जानते क्यों, मगर दिल के अंदर एक अजब सा सुकून उतर आता है। ये वो लम्हा है जब अल्लाह तुम्हारे दिल की ज़ुबान से तुम्हें कुछ समझाता है। वो कहता नहीं, मगर दिल को एक ख़ास सिमत में टका देता है। तुम भूलना चाहो तो भी नहीं भूल पाते, क्योंकि ये याद तुम्हारी अपनी नहीं होती, ये याद ऊपर से भेजी गई होती है। बाज़ का तुम्हें लगता है ये सिर्फ ख्याल है, लेकिन वो ख्याल इबादत के बाद भी बाकी रहता है। वो दुआ के बाद भी दिल के करीब बैठा रहता है। और जब तुम सुकून तलाश करते हो न तुम्हें वही एहसास, वही चेहरा, वही मानूस सी कैफियत लौटा देती है। ये महज याद नहीं, ये रब की निशानी होती है। अल्लाह जब किसी को तुम्हारे नसीब में लिख देता है तो वो तुम्हारे जिक्र का नहीं, सुकून का हिस्सा बन जाता है। तुम्हारा दिल उससे बहस नहीं करता, बस मानूस रहता है, जैसे बरसों की पहचान हो। कभी दिल चाहता है कि इस एहसास को लफ्ज़ों में समेट लूँ, मगर जब ज़ुबान खुलती है तो अल्फाज गायब हो जाते हैं, क्योंकि रब के बनाए हुए रिश्ते शोर में नहीं, खामोशी में पहचाने जाते हैं। ये वो मोहब्बत नहीं जो वक्त के साथ कम हो जाए, ये वो मानूसियत है जो दिल की गहराइयों में छुप कर हर दुआ के इख्तिताम पर आमीन के साथ बह जाती है। तुम्हारे जिक्र में उसका नाम नहीं, मगर जब तुम सुकून की दुआ मांगते हो तो रब उसके नाम से तुम्हारा दिल भर देता है। यही दूसरा इशारा है जब अल्लाह किसी को तुम्हारे दिल में जिक्र के तौर पर नहीं, सुकून के तौर पर रख देता है। ना तुम इससे बात करते हो, ना इसका इंतज़ार करते हो, मगर जब तुम तन्हा होते हो तो दिल के किसी गोशे में एक मानूस खामोशी तुम्हारा हाथ थाम लेती है। यही खामोशी अल्लाह की तरफ से आने वाला पैगाम है। ये ऐलान नहीं, मगर समझने वालों के लिए निशान होता है। जो दिल इस निशान को पहचान ले वो अपनी दुआ के रास्ते में अपना नसीब को पहचान लेता है। 5 तरीके जिनसे अल्लाह इशारे देता है कि किससे शादी करनी चाहिए में से तीसरा इशारा, जब दुआ तुम्हारे लबों से नहीं तुम्हारे नसीब से अदा होने लगती है। ज़िंदगी में कुछ दुआएं ऐसी होती हैं जो तुम मांगते नहीं, मगर वो तुम्हारे हिस्से में लिखी जाती हैं। तुम्हारे लब खामोश रहते हैं, मगर
तुम्हारा नसीब उन दुआओं को दोहराता रहता है। ये वो लम्हा है जब अल्लाह तुम्हारे दिल के अंदर वो चाहत रख देता है जिसका तुमने शऊरन कभी तकाजा नहीं किया। तुम हैरान रह जाते हो कि ये ख्वाहिश कहाँ से आई, ये सांस क्यों इतना मानूस लगता है। ये तुम्हारी दुआ नहीं होती, ये अल्लाह की तरफ से तुम्हारे नसीब का जवाब होता है। कभी तुम किसी के लिए दुआ नहीं मांगते, लेकिन जब तुम सुकून की दुआ करते हो तो वही शख्स तुम्हारी सोच के दरवाजे पर आ खड़ा होता है। ये वही लम्हा है जब रब तुम्हारे और इस के दरमियान एक नादीदा रिश्ता बुनना शुरू करता है। ना वादा होता है ना इजहार, मगर दिल के अंदर एक खामोश यकीन उतर आता है कि ये वही है जो मेरी दुआ का मतलब था, अगरचा मैंने इसका नाम कभी नहीं लिया। अल्लाह का निज़ाम बड़ा अजीब है, कभी वो तुमसे दुआ मंगवाए बगैर ही जवाब दे देता है और कभी तुम्हारे हाथ उठे होते हैं मगर अल्फाज नहीं मिलते। तब तुम्हारे नसीब की तकदीर तुम्हारी जगह दुआ करने लगती है। तुम खामोश रहते हो मगर किस्मत की तहरीर रब के हजूर अर्जी देती है। वो अर्जी लफ्ज़ों से नहीं एहसास से लिखी जाती है। यह इशारा उस लम्हे ज़ाहिर होता है जब तुम महसूस करते हो कि कोई ताल्लुक़ तुम्हारी मर्ज़ी से नहीं तकदीर के बहाव से जुड़ रहा है। तुम सोचते नहीं, बस दिल की राह खुद ब खुद उस तरफ मुड़ने लगती है। वही है जो तुम्हें मुकम्मल महसूस कराता है, वही है जिसके जिक्र के बगैर तुम्हारी दुआ अधूरी लगती है। अल्लाह जब किसी को तुम्हारे नसीब में शामिल करता है तो तुम्हें उसकी तरफ माइल होने के लिए दलील की ज़रूरत नहीं पड़ती। दिल खुद कहता है ये वही है जो मेरे लिए लिखा गया है। और हैरत की बात यह है कि तुमने कभी इसका मुतालबा नहीं किया था। यही तो असल दुआ है जो तुम्हारे लबों से नहीं तुम्हारे नसीब से अदा होती है। कभी कभी तुम किसी नाम को भूलने की कोशिश करते हो मगर हर नया मोड़ उसी नाम की खुशबू लिए आता है। तुम्हारे फैसले कहीं और मगर तुम्हारा सुकून उस एक रुख पर कायम रहता है। ये वो लम्हा है जब तुम्हारी चाहत, तुम्हारा इख्तियार और तुम्हारा मुकद्दर एक ही सफ़े पर आ मिलते हैं। यही अल्लाह का तीसरा इशारा है। जब दुआ मांगने की ज़रूरत नहीं रहती क्योंकि दुआ तुम्हारे नसीब से खुद निकलकर अर्श तक पहुँचती है। ऐसी दुआ में लफ्ज़ नहीं बल्कि तकदीर की खामोशी बोलती है, और जो दिल ये खामोशी पहचान लेता है वो जान लेता है कि अब फैसला ज़मीन पर से नहीं आसमान पर हो चुका है। 5 तरीके जिनसे अल्लाह इशारे देता है कि किससे शादी करनी चाहिए में से चौथा इशारा। जब कायनात तुम्हारे खिलाफ नहीं तुम्हारे फैसले के हक में साजिशें करने लगती है। ज़िंदगी में एक वक्त ऐसा भी आता है जब तुम महसूस करते हो कि सब कुछ अपने आप ठीक होने लगा है। वो दरवाजे जो बरसों से बंद थे अचानक खुलने लगते हैं। वो लोग जो कभी रुकावट थे खुद रास्ता बनाने लगते हैं। वो हालात जो तुम्हारे फैसले के खिलाफ थे अब उसी फैसले के हक में गवाही देने लगते हैं। ये वो लम्हा है जब अल्लाह अपनी तख्लीक को तुम्हारे हक में झुका देता है। ये इसका खामोश इशारा है कि अब वक्त आ गया है, वो फैसला करो जो मैंने तुम्हारे लिए लिखा है। कायनात खुद तुम्हारे इरादे की खिदमत करने लगती है। तुम्हारी सोचें सीधी होने लगती हैं, रास्ते आसान होने लगते हैं और दिल को वो इत्मीनान मिलने लगता है जो पहले कभी नहीं मिला। ये अल्लाह का निज़ाम है। जब वो किसी बंदे के लिए कोई नसीब मुकर्रर करता है तो पूरी कायनात इसके फैसले की गवाह बन जाती है। लोग तुम्हें समझाने की कोशिश करते हैं कि ये मुश्किल है, ये मुमकिन नहीं, मगर हालात खुद उनकी बात को झटका देते हैं। रुकावटें गिरने लगती हैं और हर मोड़ पर एक अनदेखा हाथ तुम्हारे हक में मुदाखलत करता है। ये मुदाखलत इत्तेफाक नहीं तकदीर की मनसूबाबंदी होती है। कभी तुम सोचते हो कि ये सब महज किस्मत का खेल है, मगर असल में ये इलाही साजिश होती है। अल्लाह अपने बंदों के लिए वो इंतज़ाम करता है कि वो खुद हैरान रह जाए। तुम एक फ़ैसला करो और देखो कि सारी दुनिया इस फैसले के गिर्द हम आहंग होने लगती है। लोग जो कभी तुम्हारे खिलाफ थे अब तुम्हारी हिमायत करने लगते हैं। वाक़या जो पहले उल्टे चलते थे अब सीधे रुख इख्तियार कर लेते हैं। ये कायनात का तुम्हारे साथ झुक जाना दरअसल हकीकत रब के इशारे में से एक इशारा है, क्योंकि जब अल्लाह चाहता है कि तुम किसी से जुड़ जाओ तो वो तुम्हारे और उसके बीच से सब रुकावटें खुद हटा देता है। ना लड़ाई होती है ना उलझन, बस सब कुछ एक
खामोशी हम आंगी में ढलने लगता है। ये हम आंगी इत्तेफाक नहीं, इलाही नज़म है। जब कायनात तुम्हारे हक में साजिश करती है तो तुम्हारे दिल में शक नहीं रहता, क्योंकि तुम देखते हो कि हर दर खुल रहा है, हर रास्ता रोशनी लेकर आ रहा है। ये वो लम्हा है जब अल्लाह खुद कहता है, जा ये रास्ता मैंने तेरे लिए चमकाया है, और तुम समझ जाते हो कि अब फैसला तुम्हारा नहीं बल्कि उसका है जिसने तकदीर लिखी। यही चौथा इशारा है जब हर शय हर हाल हर वक्त तुम्हारे हक में बोलने लगता है। ये वो वक्त है जब तुम्हारे दिल का यकीन और कायनात की हरकत एक ही धुन में आ जाती हैं। तब समझो रब ने फैसला कर दिया है, अब तुम्हें हाँ कहना बाकी है। 5 तरीके जिनसे अल्लाह इशारे देता है कि किससे शादी करनी चाहिए में से 5वां इशारा, जब दिल अपनी मर्जी छोड़कर किसी सकूत में राजी हो जाए, वही रजा दरअसल इशारा है। जिंदगी के हर मोड़ पर इंसान चाहता है कि फैसले उसकी ख्वाहिश के मुताबिक हो। हम सब के अंदर एक मैं छुपी होती है जो कहती है, मुझे यही चाहिए, यही दुरुस्त है, यही मेरे लिए बेहतर है। लेकिन कभी कभी ज़िंदगी एक ऐसे मुकाम पर ले आती है जहाँ दिल की चाहत चुप हो जाती है, जहाँ ज़ुबान मांगना भूल जाती है, और जहाँ इंसान सिर्फ इतना कहता है, या अल्लाह जैसे तू चाहे वैसे ही हो। यही वो लम्हा है जब अल्लाह का इशारा ज़ाहिर होता है। ये वो लम्हा है जब तुम्हारी ज़िद ख़त्म होकर यकीन बन जाती है और तुम्हारी ख्वाहिश रज़ा में ढल जाती है। अब तुम किसी नाम के पीछे नहीं भागते, बल्कि इस नाम के लिए तैयार रहते हो जो तुम्हारे नसीब में लिखा गया है। ये वो सुकूत है जो दिखाई नहीं देता मगर रूह के अंदर से बहता है।